آج آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں محمدی مسجد حمایت سمیت کے حیثیت سے جیسے صاحب مجدد صاحب ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور کچھ ایسے عناصر کرنا ہو گئے اور کچھ ایسے افواہیں پھیلائی گئی ابھی ریسنٹلی کسی ایک ایونٹ کو لے کے. اس سے پہلے ایسا ہی ایک فتنہ پھیلایا گیا تھا جس کی وجہ سے جماعت قادری کے شاعر کا شکار ہوئی اور لوگ فتنہ کرتے رہے اور ایک طرف سے باتیں آتی ہیں، دوسری طرف سے بات کہنے کا موقع نہیں ملا یا ہم لوگوں نے پسند کیا کہ اس بات کو نہیں کہا ہے. لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جماعت میں اختلاف پیدا ہوا اور کافی لوگ اس اختلاف کا شکار جماعت رہی اور حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ کچھ غیر جماعتی عناصر جماعت میں داخل ہوتے ہیں اور طرح طرح کے پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں اور اس کے بعد سے نکل جاتے ہیں اور آپس میں جماعت اس میں لڑتی رہتی ہے. تو اسی چیز کو کلیریفائی کرنے کے لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ یہ جماعت کو چاہیے کہ اپنے عوام کو ایک ایکسپلینیشن دیں کہ معاملات کیا ہیں اور اس کے حقائق کیا ہیں. تو ابھی سب سے پہلی بات ہے کہ ایک پروگرام یہاں پہ ہونے کا طے پایا یا پھر وہ چند لوگوں کی آپسی وہ ایک پرسنل رائے تھی جو آ کے انہوں نے پیش کیا محمدی مسجد کی کمیٹی کے پاس، جس پہ محمدی مسجد کے لوگوں نے شاید سیکریٹری صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ ایک میٹنگ بلائیں گے اور میٹنگ میں بات ہوگی اور میٹنگ میں بات ہونے کے بعد آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا کہ ہونا کیا ہے. اب چونکہ لوگوں کو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی بڑی اہمیت رکھی ہے دین میں، تو لوگوں کو جب پروٹوکولس پتہ نہیں ہوتے، طریقہ کار پتہ نہیں ہوتا کہ جماعت میں چلنے کا طریقہ کیا ہے، تو ایسی غیر ضروری حرکات ہوتے ہیں. تو سننے میں آیا کہ تو پھر وہ میٹنگ سے متعلق بات ہونے لگی کہ میٹنگ ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اب یہ چیز میں ساتھ ساتھ یہ کلیئر کرنا چاہوں کہ کوئی بھی جماعت کوئی بھی تنظیم جو ہوتی ہے ایک طریقے سے چلتی ہے جس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. لوگ بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں مینجمنٹ کے اوپر، تو ایک مینج کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ لوگ جب بیٹھتے ہیں آپس میں تو اب اگر کوئی چیز کوئی اگر خراب بھی ہے تو تب اپنے خیال سے اس کے خیالات بدلے جاتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک پوائنٹ پہ آ کے ریڈی ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے اس میٹنگ کا ایک فائدہ ہوتا ہے. یہ میٹنگ کا طریقہ ہے. تو کیا ہوا کہ ان لوگوں نے جیسے کمیٹی نے ان لوگوں کو کہا اور میں یہ ساتھ ساتھ بتانا چاہوں کہ اس میں کوئی جماعت نے حصہ نہیں تھا. وہ ایک ایسے لوگ تھے جن کو جماعت جانتی بھی نہیں ہے اور ایک جماعت تھی جس نے کوئی سروکار کی ہے جماعت سے. تو ظاہر سی بات ہے کہ گاڑی جب انسان خریدتا ہے تو اپنے اولاد کو بھی دینے سے کتراتا ہے کہ وہ ڈرائیونگ نہیں جانتا ہے کہ کہیں ٹھوک نہ دے اور اس کے بعد سے اس کو نقصان ہو جائے. تو وہی طریقہ ہے کہ جماعت جو اس طریقے سے جماعت جو بنی ہے یہاں اور جن مشکلات کا سامنا کر کے بنی ہے اور آئے دن آپ کو جیسے پتا ہوگا جو لوگ پرانے لوگ ہیں کہ جتنے بھی پروگرامس یہاں پہ ہوئے ہیں اس میں 2 4 5 پروگرام ہوئے اور اس میں ایک دو میں پولیس کیس وغیرہ وغیرہ اس چیز کا سامنا کرنا پڑا جماعت کو. تو جماعت نے اس چیز کا سامنا کیا. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جماعت نے سوچا اور جماعت نے کیا سوچا کہ جماعت اپنا بھی کبھی پروگرام کچھ کراتی ہے تو اس میں 10 میٹنگ ہوتے ہیں، تبادلہ خیال ہوتا ہے، ایک پروگرام سیٹ کیا جاتا ہے، کیا لیگل پروٹوکولس ہے اس کو فالو کرتا ہے، یہ ساری چیزیں کیا تدابیر ہوگی اس کا ایک عنوان طے ہوتا ہے، اس کے بعد سے پروگرام ہوتا ہے. اگر کیا ہوا کہ تو ان لوگوں نے اس طریقے سے بات کی اور آئے تو ایک دن آزاد بھائی غالباً 4 5 دن مطلب مجھے دن یاد نہیں، آزاد بھائی نے گانا بھیجا مجھے نہیں بھیجا، وہ کمیٹی کے واٹس ایپ گروپ میں بھیجا جس میں 3 ائمہ کرام کا فوٹوز تھا اور پروگرام کا ایک جو خاکہ ہوتا ہے وہ تھا.
नमूना है, एक नमूना है, एक मतलब डेमो है जो ये लोग आए हैं पेश करने के लिए। और अच्छा कोई बात नहीं। तो मेरे दिल में कुछ सवाल थे, तो मैंने कहा कि इस तरीके से प्रोग्राम होगा, ये जमीन के हिसाब से भी हो सकता है या फिर ये हो सकता है, इसका प्रोटोकॉल, इसका टॉपिक सारी जगह तय करेंगे। फिर मैंने एक सवाल पूछा कि क्या आपके साथ जमात का कोई आदमी या जमात का कोई ग्रुप, जैसा ISO का मैंने नाम लिया जो एक YouTube चैनल है और उसके लड़के सारे जमात की लड़के हैं जो जमात में काम करते हैं, तो मैंने पूछा कि ISO आपके साथ है? तो उस नुमाइंदे ने जो आया था यहाँ पे वो अपनी बात कहने के लिए, वो नुमाइंदा हो रखे हैं, उसके गवाह आजाद भाई है, सलाम भाई है और वो आजाद भाई और कोई मौजूद था शायद। तो उसने कहा नहीं ठीक है। उसके बाद से बात पता नहीं क्या हुई, मैं तो फोन पे था। फिर उस नुमाइंदे ने कहा कि जमात की इजाजत देती है नहीं देती है, हम लोग प्रोग्राम करवाएं। तो मेरे कहने का मतलब है जब जमात की इजाजत से आपको मतलब ही नहीं, आप करने क्या है मस्जिद। तो सबसे पहली बात इस प्रोग्राम की बुनियाद एक झूठ में रखी गई जिसमें ISO 100% इन्वॉल्व था। और ये बात ये लोग शायद कहते हैं हम लोगों को कि इनको फायदा होता हो, क्योंकि इसके पहले ISO सैकड़ों प्रोग्राम्स करवाती रही और उनके कहने पे अपने खर्चात में मोहम्मदी मस्जिद ने रब्बानी साहब को बुलाया, उनका प्रोग्राम करवाया और एक अहम मसला जो चल रहा है रसूलुल्लाह मौलाना के मुताल्लिक, उसको हल करने के लिए जिम्मेदारी मैंने खुद, मेरा जो ISO का फाउंडर है उसको मैंने, तो जमात ने उन लोगों से ऐलान बरात नहीं किया था उस वक्त तक जब तक वो ऐसी हरकत को नहीं की। अब बात यहाँ पे आई कि ये झूठ से शुरुआत हुई, ये ISO साहब ने, और मुझे ये बात बाद में पता चली कि बात तो नहीं पता चली, मेरे दिमाग में है कि ये जो लोग जो प्रोग्राम करवाने के लिए है PMW से जमात से कोई ताल्लुक है ही नहीं, तो ये मौलाना महमूद मोहम्मदी को कैसे जानते हैं, ये इमरान सब्जी को कैसे जानते हैं, ये तो जमात के कभी हिस्सा नहीं है और ये उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो जमात के किसी भी आइमा को जाने। तो बाद में पता चला कि ये जो है ये ISO पीछे से इनका साथ दे रहा है। और दूसरी बात कि ये कुरान है, मुसलमानों की सबसे मौजूद किताब, इस किताब पे हलफ लेके इस किताब को हाथ उठाए। अगर कोई इस बात से इनकार करे कि मोहम्मदी मस्जिद के किसी के मेंबर या किसी कमेटी ने इस प्रोग्राम के लिए मना किया हो और इधर आए वो 4 बार अल्लाह की कसम खाए और 5वीं बार कहे कि वो झूठ कहता हो, तो उस पर अल्लाह की लानत। ये कुरान है, इसकी मार पड़ेगी लोगों को अगर उन्होंने झूठ बोला। मोहम्मदी मस्जिद के कभी भी किसी भी कमेटी मेंबर ने उस प्रोग्राम के लिए मना नहीं किया था, किसी ने मना नहीं किया। लोगों ने अपना एक प्लान बनाया था, वो उनको किसी भी तरीके से एग्जीक्यूट करना था, उसके बिना पर उन्होंने क्या किया कि वो यहाँ से उठे क्योंकि उनको टाइम नहीं देना, उनके हिसाब से कमेटी जो है उनके हिसाब से काम करे। अब वो लोग आए तो उनको आनंद फानंद में फोन करके लोगों में मीटिंग कर लेना चाहिए और मीटिंग करके बता देना चाहिए कि प्रोग्राम होगा के लिए। मतलब लोग जो कमेटी के लोग हैं ये बेकार है। मोहम्मदी मस्जिद उनको तनख्वाह देती है कि मोहम्मदी मस्जिद के लोगों के कोई भी आए और कहेगा कि हाँ भाई प्रोग्राम करवाना है और उसके लिए लोग तैयार हो गए, बस आनंद फानंद में मीटिंग कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। हर जगह के एक प्रोटोकॉल के आप काम करने वाले लोग हैं और ये एक्स्ट्रा काम है जो दिन का काम करते हैं अपने मुआश अपने फैमिली को देखने के बाद है। ये ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं था। BMW से कोई सरोकार नहीं था। फिर बात हुई ISO के साथ दे रहे। ISO ने क्या किया कि इस प्रोग्राम को पीछे से साथ दिया, हालांकि वो जमात का हिस्सा थे। और जब कोई आदमी एक बैरूनी जमात जिसका जमात से कोई ताल्लुक नहीं हो अगर चैलेंज करके जाती है मस्जिद में कि आप चाहे ना चाहे हम प्रोग्राम करवा लेंगे और कुछ भी इसका असरात होता है
में कोई नेगेटिव हो गया। तो मोहम्मदी मस्जिद ही आज के दौर में और आज के तारीख में बांसबड़िया का अहले हदीस का फेस है। और आज भी ये लोग जो प्रोग्राम करवा रहे हैं इसका चंदा 50%, 100% नहीं तो 50% लोग मोहम्मदी मस्जिद सोच ही देते हैं। और इसमें किसी का जाति इख्तिलाफ नहीं था और ना ही किसी से कोई सरोकार है। ये डब्ल्यू को कोई जानता भी नहीं था और आज भी हम लोग नहीं जानते हैं, ना ही उसे कोई ताल्लुक है जमात। आईएसओ जो जमात का हिस्सा थी, उनसे प्रॉब्लम ये था हम लोगों को कि जब ये नुमाइंदा इस तरीके से बात करके गया कि आप चाहें ना चाहें तो भी हम प्रोग्राम करवाएंगे, तो आईएसओ जो जमात का हिस्सा थी उसको जमात के लोगों के पास आना चाहिए था और उनसे पूछना चाहिए था कि जमात के पास ये लोग गए थे, आप लोग इजाजत दिए नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए, या दिए तो हम लोग काम करें। इस तरीके का एक इजाजत या एक मशवरा आईएसओ को यहाँ से करना चाहिए था, बल्कि आईएसओ ने ये काम नहीं किया। उसके बरखिलाफ जाते हुए जमीयत के ऊपर जाकर उन्होंने साथ दिया और लोगों को तरह से दो चार मैसेजेस मेरे पास दिया है लोगों के कि आप लोगों ने जो है ना प्रोग्राम के लिए मना किया। तो मैंने उस इंसान को कहा कि आप अगर कुरान उठाएं हाथ में और कहें कि अल्लाह की मान मुझ पे पड़ेगी, अगर ये बात मैंने झूठ कहा हो तो मैं ये तस्लीम करने के लिए तैयार हूं कि जमात में किसी काम के लिए कोई भी चीज मना नहीं किया। यहाँ पर बात ये डब्ल्यू का नहीं था, यहाँ पर बात की जमात की, जमीयत की, जो जमीयत के ऊपर लोग यहाँ पे चैलेंज करके गए थे उस चीज की। और सरकार आईएसओ से कि आईएसओ को पहचानी इस मस्जिद से मिली, आईएसओ चैनल बना इस मस्जिद के वीडियो से, आईएसओ जमात का हिस्सा रहा, तब कि हम लोग वो लोग अलग हुए नादान थे। आज भी वो लोग नादानी के उन्होंने ये कदम उठाया। आज भी जमात कहती है कि वो लोग नादान है और उनकी नादानी ये है कि उन लोगों ने किसी बैरूनी ताकत के साथ मिलकर एक प्रोग्राम करवाया, ना कि उन्होंने ये पसंद किया कि वो आए और जमात के लोगों से राब्ता करें और पूछें कि ये तरीका सही है या फिर हमको प्रोग्राम करवाना चाहिए या नहीं चाहिए, या साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये अभी रिलेवेंट था। तो सारा मसला जो था वो आईएसओ से था, पीएफडब्ल्यू से कुछ नहीं देखा। पीएफडब्ल्यू का भी जमात का हिस्सा नहीं थी, आज भी जमात का हिस्सा नहीं था। आईएसओ को चाहिए था इसी बात को और वाज़ेह तरीके से, चूंकि ये काम करके जब जमीयत से उसने इजाजत नहीं ली और जमीयत ने इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया कि लोगों ने ऐसा चैलेंज किया है, उसके बाद भी अगर आईएसओ उनका साथ देती है, एक ऐसे ग्रोह का साथ देती है जो आपके जमीयत को चैलेंज करे, तो इसका मतलब ये होता है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कि आपने जमात से खुद ही ऐलान बरात कर दिया। तो हम लोगों ने क्या किया कि उस बात को एक तहरीरी शक्ल में शाया कर दिया और इसलिए कोई दुश्मनी किसी की बात नहीं थी। अब बाजार में और लोगों को फैलाया जा रहा है कि ये लोग खिलाफ, ये लोग ये अरे भाई यहाँ पे कोई किसी का पर्सनल दुश्मनी नहीं है। जब किसी को कोई जानेगा ही नहीं तो उससे पर्सनल दुश्मनी निभाएगा। दूसरी बात है कि ये सारा काम जो है वो जमीयत के खिलाफ जाके किया जा रहा है, जिससे जमीयत को नुकसान ये पहुंचेगा कि जमीयत दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। आपसे, मुझसे, आईएसओ से जमीयत से आईएसओ है, आईएसओ से जमीयत नहीं है। तो आज अगर नुकसान पहुंचता है जमीयत को तो ये मेरा पर्सनल नुकसान नहीं होगा, ये आईएसओ का पर्सनल नुकसान नहीं होगा, ये जमीयत का पर्सनल नुकसान होगा कि वो जमीयत दो हिस्सों में बढ़ जाए। इसका नतीजा मैं बताता हूँ क्या हुआ। कल मस्जिद में असर के वक्त एक फितना बरपा हुआ, जिसमें ऐसा मामला हो गया कि लोग मां धाम तक नहीं पहुंचे। ये कुछ और नहीं, 5 मसले को हल कर लिया गया, लेकिन ये कुछ और नहीं, ये उसी प्रोग्राम का तासुर है कि ये प्रोग्राम यहाँ पे होने वाला है। उसी बेस पे, उसी सवालात और जवाबात के नतीजे में ऐसा मामला हुआ है कि जो एक शख्स इस मस्जिद का, समझ लीजिए ये बड़ी बात नहीं है, ये सच्चाई और सदाकत है कि वो मस्जिद का पानी है। जिस शख्स के दिमाग में मस्जिद बनाने की सोच आई थी वो था नसीब।
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑا اور اس مسجد کی تشکیل ہوئی. اس میں لوگوں نے بہت سارے مشکلات جھیلے, اس میں وسیم بھی ہے اور مٹو بھی ہے, ہم لوگ بھی ہیں. لوگ طرح طرح سے تسلط کرتے رہے, لوگ طرح طرح کی افواہیں پھیلاتے رہے. جب لوگ مار کھا رہے تھے یہاں پہ محمدی مسجد الحدیث کے نام پہ, تو یہ لوگ نہیں تھے. یہ لوگ آج 4 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد ایک باہر پروگرام کروا کے یا باہر ایک پروگرام کے بنا پہ جماعت سے بغاوت کر رہے ہیں. لگ رہا تھا کہ 7 تاریخ کے بعد جیسے قیامت آ جانے والا ہے, 30 تاریخ کے بعد یہاں پہ قیامت آ جانے والا ہے, یا 29 تاریخ کو سارے لوگ کافر ہو جائیں گے اگر یہ پروگرام نہیں ہوا. اگر وہ لوگ جمعیت سے بات کرتے تو جمعیت کسی بات کے لیے, جمعیت جہاں پہ کسی دوسرے پروگرام کو کروانے کے لیے نہیں ہے, دین کے لیے جو بہتر لگتا ہے جمعیت وہ کرتی ہے. اور یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ سب سے پرانے لوگ ہیں جمعیت کے. ایسا نہیں کہ کوئی آپی پل ہے حدیث ہو اور جمعیت میں آ کے ادھر کمیٹی میں بیٹھے. یہ جمعیت کے لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مار کھایا ہے جمعیت کے لیے, جنہوں نے جیل کا منہ دیکھا ہے, جنہوں نے کیس کھایا ہوا اپنے اوپر اس جماعت کے لیے. تو ان سے زیادہ جمعیت کے خیر خواہ اور کوئی نہیں ہے. جو اگر کوئی بن رہا ہے تو یہ غلط فہمی کو سے دور کر لے تو جمعیت کا خیر خواہ ہے. جمعیت کا خیر خواہ ہو رہی ہے, جمعیت کا خیر خواہ یہاں پہ بیٹھے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جو سابقون اور الاولون ہیں, جو پہلے دور کے لوگ ہیں, ان کا ویلیو, ان کا یہ الگ ہے, وہ لوگ الگ لوگ ہیں. اور اس کے بعد میں جو طلباء مسلمان ہوئے وہ الگ ہیں. تو طلباء جماعت کا فیصلہ نہیں کریں گے, جماعت کا فیصلہ ابھی کے لوگ کریں گے جو پرانے لوگ. اور یہاں پہ کسی بیرونی فورس سے کوئی اختلاف نہیں تھا, اختلاف تھا اپنے اندر کے لوگوں سے. جو لوگ جماعت کے لوگ تھے وہ لوگ ایسے لوگوں کا ساتھ دیے جو ایک ایسا کام کر رہے تھے جو جمعیت کو چیلنج کر کے کام کر رہے تھے. اسی وجہ سے ان سے اختلاف تھا. آج بھی اختلاف ان سے ہے. میں نے خود بھی ISO کے ایک ممبر کو خود میسج کیا کل رات میں تاکہ میں اسے بات کر سکوں کہ اس طریقے سے اختلافات ٹھیک نہیں ہے, کیا کرو کہ معاملات کو سلجھاؤ. اور تم لوگ کو چاہیے تھا, میرا مقصد تھا کہ میں ان کو بتاؤں کہ تم لوگ کو چاہیے تھا کہ تم کسی بھی ایک غیر جماعتی تنظیم یا کسی بھی کام کے ساتھ دینے سے پہلے تم جماعت میں آتے اور پوچھتے کہ کیا یہ کام ہم لوگ کریں, ایسا کام ہونا چاہیے کہ جو لے کو چیلنج کریں. آج تک تم لوگ جتنا پروگرام کروائے, تمہارے کسی بھی پروگرام میں کسی نے کوئی فتویٰ جاری نہیں ہے. انفیکٹ ہم لوگ اور یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں, تمہارے پروگرام میں ہم لوگ گئے ہیں. ہاں تمہیں سے گئے نا کیا پروگرام اٹینڈ کیے ہیں تمہارا کیا جماعت پرسنل طور سے تمہارا پروگرام اٹینڈ کیے ہیں. جمعیت کے اگر ہم پرسنل یہاں کے نائب صدر ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ میرا ایک فیس یہاں تمہارے پروگرام نسیم بھائی بھی گئے تمہارے پروگرام میں, اسکول میں جو تم نے پروگرام کروایا ہے یا پھر تم لوگوں نے یہ ویلکم ورک. تو جماعت کو پرابلم کن لوگوں سے, وہ لوگ کبھی طرح طرح کا پروپیگنڈا باہر میں چل رہا ہے کہ یہ لوگ جماعت کے خلاف ہیں اور یہ پروگرام جو ہے وہ ندیم کے خلاف ہے. یہ میرا کیا خلاف ہے, میرا کس سے جاتی دشمنی ہے, ان لوگوں سے جاتی دشمنی ہے کہ ان لوگوں سے تم سے کیا سنو کھڑا ہو جاؤ, کھڑا ہو جاؤ. تم سے ہم لوگ کا کوئی جاتی دشمنی ہے, ابھی تک کوئی لڑائی جھگڑا ان لوگوں سے کچھ نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, صرف جماعتی بیس پہ ان لوگوں سے ایک اختلاف ہوا جس کے نتیجے میں جماعت کو نقصان پہنچ رہی تھی. اس وجہ سے ہم لوگوں نے چاہا کہ یہ پروگرام رک جائے تاکہ جماعت دو حصوں میں نہیں بڑھے. اور یہ بچے جو جماعت کا حصہ رہے ہیں ان کو یہ پتا چلے کہ جماعت کے خلاف جا کے کوئی کام نہیں کرنا ہے, جو کام کرنا ہے ادھر سے, کیونکہ جماعت اس بات کی زیادہ حقدار ہے اور اس اعتبار سے زیادہ قابل ہے کہ اس پروگرام سے کہیں بڑا پروگرام کروا سکے. اور کل جو ہوا وہ اس پروگرام کا نتیجہ ہے. ایسے فتنہ انگیز طریقے سے یہ پروگرام کروانے کا
یہ نتیجہ ہے کہ کل ایک آدمی جو سب سے مخلص رہا ہو اس جماعت کے لیے، اس سے مارا ماری کا دور آئے۔ ایک بات، ایک سوال میرا آپ لوگوں سے کہ مسجد کس لیے بنائی جاتی ہے؟ آپ لوگوں نے مسجد کس لیے؟ مسجد کس لیے؟ ہم لوگ مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ عوام کیوں آتے ہیں؟ اس کے بعد آپ اپنے گھر نہیں ہوتا ہے۔ کئی مسجد کہاں ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور اپنے گھر جائیں۔ مسجد میں وہ لوگ بیٹھتے ہیں بعد میں، جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، جو انتظام کرتے ہیں، جو مینجمنٹ ہوتے ہیں۔ آپ مینجمنٹ کے پروگرام میں آئیں، یہاں پہ بیٹھے اور دوسروں کی تسلط کریں، دوسروں کو الٹا سیدھا بولے، تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ غلطی کس کی تھی کس کی نہیں تھی، میں یہ بول رہا ہوں کہ مسجد میں اگر مقتدی مسجد کمیٹی کے میٹنگ میں زبردستی بیٹھیں گے اور ان سے بحث و مباحثہ میں شامل ہوں تو کس طریقے کا حادثہ پیش آئے گا۔ اور آج اس جماعت کی بدنصیبی ہے کہ جس انسان کے بدولت جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے چنا کہ یہ جماعت کے کام کو آگے بڑھائے، اسی انسان سے آج اس طریقے سے فتنہ برپا ہو گیا اور اس طریقے سے اس کو مسجد میں چلا چلی کرنا پڑا۔ دوسری بات جو یہ بہت اہم بات ہے کہ دیکھیے آپ لوگ اس طریقے سے فتنے کا شکار نہیں، اس سے پہلے بھی فتنہ ہوا، لوگ الگ الگ بڑھے، یہ بڑھنا ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے، ہماری تعداد بہت چھوٹی ہے۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی سوالات ہیں، آپ آئیں پوچھیں اچھے طریقے سے، یہی طریقہ ہے، نہ کہ ایک آدمی لوگ تو کام اچھا سبھی کرواتے ہیں۔ امام القیدہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ اگر آپ کے مخالف ایک جماعت بنتی ہے، ایک جماعت یہاں پہ اگر موجود ہے اور اس کے مخالف ایک جماعت بنتی ہے، اس کے خلاف اگر وہی کام کرتی ہے تو اس کی مثال مسجد جراثی ہے کیونکہ وہ فتنہ پھیلاتا ہے۔ یہ میرا قول نہیں ہے، کہ امام شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اور دوسری بات ایک عالم دین نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ لوگوں کی مسجد بھی تو بنی خالد عبداللہ کی مسجد ہو گئی، میں اس کا جواب دے دوں اس ویڈیو کے وساطت سے کہ یہ مسجد خالد عبداللہ صاحب سے اختلاف کر کے نہیں بنی، ان کے تعاون، ان کے مدد، ان کا ایڈوائزر، ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھتے ہوئے بنی۔ انہوں نے کبھی اس مسجد کا کوئی وجہ کوئی اس کے خلاف فسا نہیں دیا کہ یہاں پہ مسجد نہیں بننی چاہیے، صحیح ہے۔ تو یہ ایک سارا ایک ہتھیار تھا جو جماعت کو توڑنے کے لیے کیا گیا اور بہت لوگ کامیاب بھی ہو گئے۔ آج جماعت کی تبھی نہ یہ میٹنگ، یہ بات چیت کرنے کی نوبت اسی صورت میں آ گئی کہ لوگوں کے درمیان ایک پروپیگنڈا پھیلا دیا ہے کہ یہ لوگ پروگرام کے خلاف ہے، یہ لوگ دین کے خلاف ہے، یہ لوگ دین کا کام کرتا ہے نہیں کرتا۔ آپ نے ایک بات بتائی، دو چار سوال میں بول کے پوچھ کے میں بات ختم ہو۔ لاسٹ 2 سال میں یا 3 سال میں آپ نے جماعت کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جماعت کو گھٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی آدمی کسی نے جماعت کو گھٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک کوئی آدمی گھٹتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ لاسٹ 2 سال میں مسجد میں کون سا فتنہ ہوا ہے بتائیے؟ کوئی دیکھا، کوئی جھگڑا لڑائی، کوئی ڈسپیوٹ اس طریقے سے ہوا ہے؟ کوئی ایک آدمی عام لوگ نہیں ہوئے۔ مسجد میں 2 ٹائم درس ہوتا ہے، جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، بڑے بڑے ائمہ کرام میں آتا ہے، شیخ صلاح اللہ بختی صاحب آئے، ان لوگوں نے بلایا گجال ربانی صاحب کو، انور بندی گائے بجائے 7-8 بار آتے رہتے ہیں سال میں، میرے خیال سے 7-8 بار بھی تو 5-6 بار تو ضرور بھی آتے ہوں۔ تو بڑے بڑے ائمہ کرام میں آپ کے دین کا کام چل رہا ہے، تو کس صورت میں یہ بات کہنا جائز ہوگا کسی کے لیے اگر وہ فتنہ نہیں کر رہا ہے کہ مسجد دین کا کام نہیں کرتی؟ یہ سب کس چیز کا کام؟ یہ 2 درس جو ہوتا ہے، آج یہ مولانا صاحب نے جو ایک حدیث بتائی جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے اور لوگ
इतना आवाम में से कोई दिल का नाम रखे और हाथ उठा के बताए कि ये हदीस आज से पहले किसको पता थी? किसी को पता थी? तो और किसी को यहाँ पर मेरे पास 50 लोगों का होगा, सिर्फ पता है, मतलब ये परसेंटेज में कितना हुआ? 2%। मतलब इससे 50 लोगों ने इस्तेफादा हासिल किया और लोगों ने एक चीज सीखी और लोग इस तरीके से तरह तरीके से इमाम को भी लेके एक पैदा करते हैं कि ये इमाम अच्छे हैं। तुमको कैसे पता कि इमाम अच्छे हैं? तुमको तुम्हारे सामने कोई बुराई का मामला किया और दीन वही इंसान पर रखेगा जिसको दीन का इल्म है, जो उससे पढ़ा आलिम, राइट? जैसे दुनिया के मामला में एक टीचर, छोटा टीचर एक आम आदमी की बात नहीं सुनेगा, और किसकी बात सुनेगा? जो उससे बड़ा उस्ताद होगा, जो उससे ज्यादा जानता होगा। तो किसी बड़े आलिम को बुलाइए कि यहाँ पे बैठाइए और उनसे पूछिए कि ये इमाम साहब का नॉलेज कितना है, तब ना आपको पता चलेगा। खैर, बात लंबी हो जा रही है। बात के अंदर ये प्रोग्राम जो भी हो रहा है, जिसकी भी मदद से हो रहा है, ये एक सिवाय फितना पैदा करने के और जमात के तोड़ने और एक सियासी चाल अपने नाम अपने हाथ देके एक चाल चलने के अलावा कुछ भी नहीं है। और उसमें शिकार की जमात, क्योंकि ये जो बाहर की जमात, बाहर का इंतजाम था, उसको जमीयत की कोई नॉलेज नहीं है। जमीयत के किसी आइमा को पता है, वो पहचान कर देंगे। इस का शिकार हुई जमात के के लोगों ने ऐसे लोगों का साथ दिया, जमात के ऊपर जाए। उन लोगों को हमेशा से चाहिए था, एक तरीका कार है, हर जमाने में ऐसा हुआ था और हर जमाने में ऐसा होता आएगा कि खंडक का भी मशवरा सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला ने दिया और मुकाबले इब्राहिम मुसल्ला बिछाने का भी वो मशवरा उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने दिया, जिसको इंडोर सल्लाह तआला ने कर दिया कुरान। तो ये काम मशवरे से होता है। तो आज भी ये तकलीफ हम लोगों को यही है कि जो ISO एक यूट्यूब चैनल है और उसमें जमात के लड़के, उन लोगों को उनका साथ नहीं देके वो आती जमात के पास और जमात से मशवरा करती और जमात से बोलती कि क्या बात है, आप लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, उसके बाद से आगे फर्दर बात। इस तरीके से फितना फैला के, इस तरीके से जमात को तोड़ने का काम किसी को भी नहीं करना चाहिए और ऐसे ताकतों के जग में आके आपस में इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए। और हमारे जो पुराने लोग हैं, जो बुनियादी लोग हैं, आज नसीब की इज्जत हम लोग सभी लोग इसलिए करते हैं कि अल्लाह ताला ने उसके जरिए हम लोग को दीन से, और आज उसको कोई इस मस्जिद में आके एक फितना बर्पा करके जाए और वो इस चीज के जग में आ रहे, ये हमारे लिए जमात बहुत शर्म ऐसे जमात हम लोग के लिए बहुत शर्म, क्योंकि हमेशा अमीर जो होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, उनकी इज्जत नए लोगों के पास है कि वो उनकी इज्जत, और जो पुराने लोग हैं और जो नए लोग हैं, जो जमात में हिस्सा बने हैं, जो 4 साल पहले, उनसे एक गुजारिश है कि जमात को जोड़ के रखें, जमात को तोड़ने का काम न करें। भले नादानी में आपसे हो गया, लेकिन नादानी को फिर एक गुनाह का सकल्ला बनाए और इस चीज को जमात को आगे बढ़ने से बचाए। और ऐसे प्रोग्राम और ऐसे इवेंट्स जो गैर जमाती लोगों के थ्रू होता है, आप सबसे पहले जमात से बात करें ताकि कल को कुछ भी होता है, कुछ भी कुछ नीच होता है, और इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता कि नहीं होगा। अगर हो गया इसका सारा इंसान मोहम्मदी मस्जिद पे आएगी और जमीयत समाज में और बदनाम हो जाएंगे, इसका असर बुरा है। और मेरी जो भी बात आप चाहें, 2 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैंने जो भी कहा ये 2 लोग से मौजूद थे, एक आजाद भाई और सलाम भाई, आप लोग इनसे वेरीफाई करें, इनसे वेरीफाई करें। हम लोग को जगह से भी आइडिया नहीं था और उसने आके कहा था कि ISO इसमें बस इसी बात को कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और उम्मीद है कि इस तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। और ऐसे प्रोग्राम, ये प्रोग्राम कौम
कौम को नहीं बदले। हमारा अपना एक होना, हमारा अपना इत्तेहाद जमात को बढ़ाने में काम करती है, ना कि इस तरीके से अलग अलग टूट कर प्रोग्राम करवाने से। प्रोग्राम यहाँ पे भी हो रहा है और रोज हो रहा है, आइंदा आने वाले सालों में भी बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे, लेकिन इस तरीके से कोई आदमी आपको आके वर्गलाए और आप उसके जन्म में आके आप जमा से पूछ नहीं, ऐसा नहीं। एक गुजारिश है, उसके पास नसीब भाई आपको कुछ बताएंगे कि इस जमात के आगे क्या प्लानिंग है और क्या प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो भी हो रहा है वहाँ पर उससे हम बहुत ही ज़्यादा नाखुश हैं इस मामले से। हम चाहते हैं और बहुत मरतबा आवाम को भी बोले हैं कि देखिए आप लोग मस्जिद का फेस को बचाइए, हमारे फेस और आपका फेस का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। मस्जिद अगर सही रहे, मस्जिद अगर काम अपना सही करे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की जीत है। और अगर कोई भी चीज हो रहा है, आज जैसे ये बैनर मारा गया है, 2-3 लोग कॉल किए, बोले कि आपके प्रोग्राम में आने वाले हैं, जरूर आएंगे। हमको बोले, हम बोले कि अब उनको क्या बोले कि मेरा प्रोग्राम नहीं है या मेरा प्रोग्राम है, ठीक है ना। अगर हम चाहे तो भी हम नहीं बोलेंगे नहीं ये मेरा प्रोग्राम नहीं है, फिर भी ये बांसबरिया इस चीज को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि आप लोग प्रोग्राम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि नजीब भाई ने हमारा बताया कि कुरान पे आपके हाथ ले और हाथ रख कर बताए कि कौन लोग हैं जो इस प्रोग्राम को रोकने की कोशिश किए हैं और किए हैं तो कब किए हैं। तो बात ये क्लियर हो गई कि अभी तक आज भी बता रहे, अभी बता रहे, कोई भी आए और गलत बात दे और बोल दे कि हम लोग इस प्रोग्राम को रोकने के लिए कोई मेंबर बोला था नहीं प्रोग्राम नहीं होगा, हम कुछ प्रोटोकॉल्स थे उसको नहीं फॉलो किया गया है, तो हम तो सोचे कि जमात की बात नहीं है, काम किया जाए। हम लोग जमीयत पे बात कर रहे हैं क्योंकि जमात इस्लाम जमीयत एक मायने रखता है। जब हम लोग जमीयत में पहुंचे लोग और बताए कि आम लोग हमसे चैलेंज कर दिए हैं कि हम यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे, आप इजाजत दे या ना दे। खैर हम जमीयत में गए थे वहां पे, तो वो लोग बता रहे थे कि हम मेरे पास जो लोग आए थे लोग और हम लोग लिख के दिए हैं लोग, वो जमीयत के ही लोग थे। क्या थे लोग? जमीयत के लोग थे। आप लोग पहले कुछ नहीं बताए। हाँ, आप लोग पे एक इल्जाम है कि आप लोग दीन की काम नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आप लोग इंजीनियर अली मिर्जा का फॉलोअर हैं और आप लोग इस्लाम के काम नहीं कर रहे हैं और किसी को करने नहीं दे रहे हैं। ये तमाम लोगों को ये चीज फैला दिया गया, बोल दिया गया। अब कौन बोले हैं? अल्लाह बेहतर जानते हैं। रसूलुल्लाह साहब से लेकर अभी जो हमारे इमाम साहब हैं, आप उनसे पूछिए बुलाकर, क्या अली मिर्जा इंजीनियर अली मिर्जा की तकरीर आप करते हैं या उनके एजेंट्स में बात करते हैं? तो इस तरह से हर जमीयत में हर लोग क्यों कह रहे हैं आपको कि आप लोग दीनी काम नहीं कर रहे हैं लोग, आप लोग जमीयत के काम नहीं कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। तो खैर हम आज भी चाह रहे हैं कि हम लोग मिलकर काम करें, हम लोग सब एक होकर काम करें, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये चीज है कि मिशन हम लोग का है, हम लोग एक टारगेट लिए हैं। जैसे कि बहुत पहले एक मिशन दिया गया था, तो पुराने लोग हैं वो जान रहे हैं। पहले जो हमारे पुराने लोग थे लोग, एक लोग 10 लोग पे भारी पड़ रहे थे, दीन की बात जो हुज्जत का है, लेकिन आपस में जब हम लोग मिलते थे लोग इतना खुश होते थे लोग कि कोई हिसाब नहीं। हर लड़का जो पुराने लड़के हैं वो हाथ मार के दिखा देंगे हम 10 लोग को लेडीज बनाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई करने वाला नहीं था। बहुत मेहनत से काम करते थे लोग और उस वक्त मुझे बताया था कि इंशाअल्लाह जब मस्जिद हो जाएगी हम लोग सब काम इंशाअल्लाह मस्जिद के थ्रू करेंगे, ठीक है ना। और आज भी हम लोग मिशन में काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं काम नहीं किया जा रहा है। हाँ, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि वो चीज 1-2 दिन और 10 दिन अवसान वाली बात नहीं है, उसमें एक वक्त लगेगा। कोई भी जब बड़ी चीज बनती है ना, ताजमहल 2 दिन में नहीं बनती है, ताजमहल 1 साल में नहीं बनती है, ताजमहल को बनाने का टाइम लगता है। तो इसी तरह से कोई इंसान अगर बहुत बड़ा काम करेगा ना तो उसके लिए वक्त क्या टाइम चाहिए। और इसी मकसद को आज अल्हम्दुलिल्लाह कई बार अपने बच्चों को बुलाए हैं कि आओ तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी प्लान्स हैं, इंशाअल्लाह आओ तुम लोग बैठे लो बात करो, तुम लोग जो सोच रहे हो उससे ज्यादा मेरे पास अच्छा प्लानिंग है, आओ सब लोग मिलकर काम करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं और हम दिखाएंगे कि काम कैसे की जाती है जमात। हम सिर्फ जमात नहीं बल्कि अपने मुसलमान कौम के लिए काम करने वाले हैं इंशाअल्लाह।
और कर रहे लोग और समाज को हम दिखाएंगे। देखिए एक छोटी सी बात है, मिसाल अब मेरा एल्फा सेंटर है, उसमें पढ़ाते हैं, तो कभी कभी मदीना मस्जिद में मिलाद शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब जिस दिन मिलाद रहता है ना, उस दिन मेरी पूरी पढ़ाई बच्चे के खराब हो जाता है, यानी कि पढ़ाई बंद हो जाता है। इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जब मैथ सब फट लग जाता है, ठीक है ना। तो आज जो है एक पढ़ाई का एक माहौल है, एक पढ़ाई का क्या है, एक दौर है, मोबाइल का दौर है। आज इस चीज से लोग इरिटेट हो रहे हैं, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लोग हमें बुला रहे हैं लोग कि आप लोग ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं। इससे पहले भी सवाल किए थे लोग, स्कूल के लोग सवाल किए थे हमसे, स्कूल में जब प्रोग्राम हो रहा था तो जैसे कि ब्रदर इमरान आए थे तो बोले थे तो उनकी समझ में नहीं क्या हुआ कि एग्जाम बच्चा नहीं चला था, तो उन्होंने सब प्रोग्राम पढ़ा लिखा लिखा होगा काम करता था सब नौसाद मास्टर और कुछ लोग देकर लोग थे लोग, हम लोग चोंगा बांधने के लिए क्यों किए थे लोग, तो बोले ये सब बात लॉस हो गया। जब ब्रदर इमरान आए थे लोग तो उसमें आप लोग देखे होंगे हम लोग चर्च में गए थे लेटर लेकर पादरी को दावत देकर बुलाने के लिए, क्योंकि हमारा लेवल अब बढ़ रहा है, वो लेवल हमारा सोच अब नहीं रहा है, हम लोग एज भी बढ़ रहा है, लेवल भी बढ़ रहा है। हम लोग गए तो लोग डलम में एक क्या है गुरुद्वारा है, उसमें लेटर लेके गए थे दावत देने के लिए। यानी कि समझ लीजिए कि हम लोग हर जगह जा रहे हैं, बड़े बड़े बहुत बोले ये बहुत बड़े गुंडे हैं या कुछ भी लोग उनके पास गए, आप भी आइए प्रोग्राम में बैठिए, नॉन मुस्लिम के पास, पावरफुल लोग के पास, इवन हम लोग किसको दावत देके आए, हम लोग दावत देके आए जो भी कौन है एमएलए है उनको भी दावत देके आए, किसी कारण वो नहीं आए, देखे कि ये दिल्ली है, लेकिन हमने आवाम अपने कुछ लोग को भेज दिए थे ये बोलने के लिए कि नहीं हमारे लोग गए हैं प्रोग्राम में। तो कहने का मतलब है कि हमारी सोच वो लेवल पे नहीं रह गई है, अब हम थोड़ा सा बच्चे वाला सोच से अब इस चीज को थोड़ा सा अच्छा नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग कहीं रोड पर 50 चोंगा लगा के प्रोग्राम करें, इससे बहुत आम लोग को बहुत नुकसान पहुंचा है। हाँ, एक प्लान होना चाहिए, आइए हमारी तरफ से एक एरिया को सिलेक्ट करें जहां पर प्रोग्राम करें और देकर आवाम को नुकसान ना पहुंचे। ये है इंप्रेस करने के लिए, ये है काम करने का तरीका, जब किए तब किए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ब्रदर इमरान जब आए उनके बाद हम बता रहे थे कि इन्होंने उसने जो दावत दी लोग, अब हमारा सोच किस लेवल पे जाएगा। और आज भी जैसे बच्ची में पढ़ रही है वो बच्ची वो बहुत बेहतरीन जानती हो कैसे लेक्चर दिया जाता है, उनको ट्रेन किया गया है, इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम होगा वो देख लीजिएगा, और वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले से बताएं इंशाल्लाह हम यहाँ से डिस्ट्रिक्ट टॉपर बच्चे को तैयार करेंगे और इंशाल्लाह वो सब बच्चे मोहम्मदी मस्जिद के लिए काम करेंगे। अगर 5 साल के अंदर अगर वो सब बच्चे दीन के लिए अगर काम नहीं करें तो आप बताइएगा आपके बच्चे हैं ये दीन के काम नहीं कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह सेंटर प्रमोट करेंगे। यानी कि हम अगर कोई सेंटर भी खोले हैं तो वो अपने दीन के लिए, अपने मस्जिद के लिए, अपने आवाम के लिए। और आज के दौर में हम बता रहे हैं कि अभी 4 दिन पहले की बात है, एक नूरेन नाम की लड़की है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में उसका जॉब हो गया, तो एक एसआईओ का प्रोग्राम हो रहा था तो वो आई लेक्चर देने के लिए। तो एक हमको जीएसटी ऑफिसर है वो बताए जो एग्जाम निकालिए ना वो 10th लेवल का एग्जाम निकालिए, यानी कि एक बच्चा जब क्लास 10 में रहेगा तो वो एग्जाम दे सकता है। अब हम बोले कि अगर दे सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास बहुत बच्चे हैं लोग, तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो आवाम नहीं जानते और उन्हें जानना भी नहीं है, ठीक है ना। तो हम बोले उन बच्चे का फॉर्म फिलअप किया जाए, उनको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवाया जाए, यानी कि हम अपनी कौम को कैसे तरक्की देंगे, यही करता कि मौलाना को बुलाए, तकरीर करे, डकरे, ये सब ऐसे दिन चलेगी, ये तरीका नहीं है। आज पढ़ाई के दौर है, कंपटीशन के दौर है, अगर आप पावरफुल नहीं मिला तो आपको मान आज हम बता रहे हैं यहाँ से मस्जिद पहले से मस्जिद ज्यादा है या कम है, मस्जिद पहले से मदरसा ज्यादा है या कम है। मुसलमान का जो कंडीशन है आप लोग समझ नहीं आ रहा है, क्या हालत हो गई है मुसलमान की कि उनको कोई इज्जत नहीं है। जहां मुसलमान को पा रहा है लोग मार रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कोई बात करने वाला नहीं है सब लेवल पर। तो कहने का मतलब ये सच है कि इतने मस्जिद इतने मदरसे तो बन रहे हैं, लेकिन मुसलमान का हालात कहाँ जा रहा है, दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है, इसलिए कि जिस मिशन को अल्लाह ताला बताए हैं लोग उस मिशन में काम नहीं कर रहे हैं। जिस चीज से अल्लाह ताला जो चीज बोले कि आप उस तरह से काम कीजिए, उस तरह से लोग नहीं कर रहे। बस ये है कि एक उलमा आएंगे, उनका तकरीर सुननी है और बस घर चले जाना नहीं। आज देखो कैसा बताया कि मस्जिद में हमारे इमाम साहब नहीं थे, ठीक है ना।
हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे इमाम बने, हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, वो नमाज पढ़े, हमारे बच्चे आसान देना है, ये सब काम। ऐसा नहीं कि हमेशा हम लोग बाहर से लोग को बुलाए और ये सब काम करते रखें। है बात तो बोलेंगे तो बहुत बड़ी बात है। इंशाअल्लाह हम ये दुआ कर रहे हैं कि प्रोग्राम में बच्चे लोग जो भी कर चाहे जो भी कर रहे हैं लोग, अल्लाह ताला इन प्रोग्राम को कामयाब करें। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नाकाम करें, नहीं, वो भी दिन के लिए बच्चे कर रहे हैं, ठीक है ना, वो अपना प्रोग्राम करें लोग, लेकिन आइंदा से आप लोग ऐसा काम मत कीजिए जिससे जमीयत टूटे। आज हम लोग मस्जिद में, कल आप बुलाएंगे मस्जिद में और हकीकत जरूर आएंगे आप लोग, तो आप लोग मस्जिद का जो फेस है वो खराब ना करें, ठीक है ना। आइंदा से कोई भी काम करें एक प्लानिंग के साथ काम करें। अल्लाह ताला जमीयत पे अल्लाह ताला का हाथ होता है, और अगर जमीयत से हटके काम करेंगे लोग तो फिर अल्लाह ताला उसमें मदद नहीं करेंगे, बल्कि दिल में भूख, इनायत और झमेला पैदा कर देंगे और हम लोग आपस में लड़ते रह जाएंगे। इसलिए कि जमीयत पे अल्लाह का हाथ है, अकेले किसी पे अल्लाह का हाथ नहीं है। तो आप लोग इसको अवॉइड कीजिए। जो हो रहा है चलिए, चाहे जो भी है, हम साथ नहीं देंगे प्रोग्राम में, लेकिन फिर भी हम रहेंगे, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे रहने के लिए। मस्जिद कमेटी के लोग भी बोलेंगे, आप लोग भी रहिए प्रोग्राम में, अगर टाइम रहे तो, ठीक है ना। कोई फसाद, कोई कुछ इतना नहीं करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह कर लो, लेकिन आइंदा से इस चीज से गुरेज करो और प्लानिंग से काम करो। हम कई मतलब बच्चे को सबको बोले इमाम से आप लोग लेके जाए, हम बोले आप पहले इमाम को बुला के दीजिए, आप बोल दीजिए कि इमाम आएंगे और बेहतरीन इमाम है, आप यहाँ पर बुलाइए, इन्वाइट कीजिए, एक जुम्मा में खुतबा देंगे, उनसे पूछ लिया जाएगा इमाम साहब से कि आप कितना 3 महीना बाद आएंगे, 2 महीना बाद आएंगे, कितना महीना बाद। अगर वो बोल देंगे हम 3 महीना बाद आएंगे, 6 महीना बाद होंगे, ठीक है, वेट करेंगे, इंशाअल्लाह आप आएंगे। तो सबको बोले हैं, जो पूरे जमीयत का वसीम वहाँ पर बैठा हुआ है उसको भी बोले हैं। बहुत इमाम का ये खुद फोन किया, लेकिन वो इमाम बोले नहीं, आपके खिलाफ बयान नहीं है, ठीक है। ये सब बात की बात है, बस यही दुआ है कि आप लोग मस्जिद के खिलाफ ना करें, इसके खिलाफ को मिटाएं और मस्जिद से जुड़े, और जो भी मस्जिद के तरक्की के लिए जो काम हो, आइए बैठिए, बैठ कर हम लोग बात करेंगे, लोग क्या करना है क्या नहीं करनी है, तंजीम बनानी है नहीं बनानी है, क्या गलत है क्या सही है, आप बैठ कर डिस्कस कीजिए, इससे हम लोग सॉल्व करेंगे और हम फिर को मिला, बस ये सब चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम।